Hello everyone. Welcome to the next lecture on the optimization technique. Today I will explain you the various examples related to how you can solve the LPP with the dual simplex method. Myself Dr. Harish Kark, you can follow and subscribe my YouTube channel. What is the objective of today's lecture? I will explain you with the help of the various examples how you can solve the LPP, whether it's a minimization or either it's a minimization, maximizations, constants are greater than or less than, or all are greater than, and so on. Fine. So if you want to learn the more concepts about the optimization, you can follow my playlist. And the last lecture was about concepts and a few examples related to the dual simplex method. You can also see the complement slackness conditions, how you can find the solution of the dual, strong duality theorem, weak duality theorem, all are available in this playlist. Now, what is the procedure that I had explained you in my previous lecture? The step number one is whatsoever the problem you have, फाइन उसको सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए. लाइक यू कैन कन्वर्ट द एग्जांपल नंबर 1 to the maximization. Similarly 2 and 3 you can convert maximization form, and whenever the constant is of greater than equal to sign, convert into the less than equal to form. इसका मतलब आप इस वाले constant को -1 से मल्टीप्लाई करोगे देन इट बिकम्स लेस देन साइन, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे एंड सो ऑन. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, dual simplex method में we never used artificial variable. We never used artificial variable. फाइन. लेकिन सिंप्लेक्स मेथड में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज कर लेते थे आप. और आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज कब होता था? whenever the constants are of greater than equal to sign or is equal to form. हमें we can never use the artificial variable in the dual simplex. इसका मतलब कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन के और इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. अगर कोई कांस्टेंट ग्रेटर देन का है we will convert into the less than equal to form, and then we can write into a standard form, complete this table finding the entering variable and the leaving variables, and we can repeat the step until we will get the optimal solutions. Make sure students, in the simplex method, simplex method कब applicable था? Simplex method is applicable only when all those values in the solution column are greater than equal to 0, while the dual simplex method is applicable whenever at least one of the value in the solution column is less than 0. Fine. कम से कम एक वैल्यू अगर आपको लेस देन मिलती है, you can apply the dual simplex method provided all these values of the zj minus cj are greater than equal to 0. मीन्स ये सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव और इक्वल टू 0 होनी चाहिए और सॉल्यूशन में कम से कम एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. फाइन. देन हाउ यू कैन फाइंड द एंटरिंग एंड द लीविंग वेरिएबल्स? सिंप्लेक्स मेथड में आप सबसे पहले क्या करते थे? एंटरिंग वेरिएबल निकालते थे and then you can find the leaving variable, while in the dual simplex method you firstly find the leaving variables and then find the entering variable. And how you can find the leaving variable? Look at the solution column. Fine. Look at the value of the minus b1, minus b2, minus b3, minus b4 and so on. Take the most negative value among these minus of the bi, and that variable is called as the leaving variables. और एंटरिंग वेरिएबल कैसे निकालना है? अगर मान लो आपके पास ये आपका लीविंग वेरिएबल है, तो इस कॉलम में ये चार वैल्यू में से लुक एट ओनली दोस वैल्यूज विच आर नेगेटिव और ओनली नेगेटिव वैल्यूज. तो मान लो आपके पास एक ये वैल्यू नेगेटिव है और एक ये वैल्यू नेगेटिव है, देन यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ zj minus cj of the x1 with this red dot color. Similarly for this second color with the respect of. उसके बाद इसका मिनिमम वैल्यू ले लीजिए इन द टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट. जो भी मिनिमम आएगा दैट इज माय एंटरिंग वेरिएबल्स. फाइन. तो मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं. जैसे आपको कहा गया एग्जामिनेशन में सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय यूजिंग द ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, चाहे तो आप प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करो, चाहे आप इसको ड्यूल सिंप्लेक्स से सॉल्व करो, आपका जो जेड का आंसर आएगा फाइनल आंसर वो दोनों तरफ से सेम आएगा. लेकिन अगर आपको एग्जाम में कह दिया है उन्होंने कि ड्यूल सिंप्लेक्स से करना है, फिर आपको ड्यूल सिंप्लेक्स से ही करना होगा. और सेकंड क्वेश्चन का क्या मतलब है? यू हैव टू राइट द ड्यूल ऑफ दिस गिवन एलपीपी. फाइन. और उसके बाद आप जो भी ड्यूल आएगा इसका उसको आप ड्यूल सिंप्लेक्स से
सॉल्व करो। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। So your first step is you have to convert the minimization to the maximization. तो आप maximization में convert करोगे, that means you have to multiply with the minus sign. Minus x1 minus of 2x2 minus of 3x3, and all those constants must be of the less than sign. So you can multiply the first constant by -1, multiply the third constant by -1 as well. Clear? ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है कि सारे के सारे एक्सरसाइज आपके पॉजिटिव होने चाहिए। अगर कोई एक वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हुआ तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो xi प्राइम माइनस xi डबल प्राइम, जैसा सिंप्लेक्स में करा था। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। फाइन। नाउ once you have write the maximizations, all the constants are less than, then convert into the standard form. You have to write the slack variable s1, s2, s3. Clear? And then your target is to complete this table. तो पहला कांस्टेंट उठाओ, x1 की वैल्यू कितनी है -1, फर्स्ट कांस्टेंट में x2 is my -1, x3 is my -1, s1 is 1, s2 0, s3 0, right hand side is -4. Look at the second row, x1, x2, x3 0, 1, 0, and it's a 8. x1 is 0, x2 is my -1, x3 is my +1, 0, 0, 1, right hand side is minus of 2. Then look at that, इसमें से आइडेंटिटी कौन बना रहा है? This is my identity matrix. Fine. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम क्या होता है? 1 0 0, वो किसके साथ लिखा हुआ है? S1. तो फर्स्ट वैल्यू विल बी S1. Second column of the identity is 0 1 0, that corresponding to the S2, and similarly for the third one is S3. Clear? Now how you can find the Zj minus Cj? You can find the value of the Cj. What are the objective functions? -1, minus of 2, minus of 3. Rest values are my 0. Fine. So you can substitute them. S1 is my 0, S2 is 0, S3 is 0. Multiply that 0 plus 0 into 1 0, 0 into 1 0, minus upper value minus minus +1. So that number is +1, +2, +3, 0 0 0. Fine. So your answer will be 1 2 3 0 0 0. Clear? I can repeat them. ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड कब एप्लीकेबल होगा? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? Zj minus Cj must be greater than equal to 0, must be. Fine. और सेकेंड इज जो भी आपका सोल्यूशन है एटलीस्ट वन वैल्यू इज लेस देन 0. एटलीस्ट वन वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0. तो यहां पे आपको दो मिली गई हैं. फाइन. अब इन दोनों में से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? -4 और -2 में से मोस्ट नेगेटिव, मतलब मोस्ट नेगेटिव का मतलब अगर ये 0 है तो दूर वाली वैल्यू कौन सी है? सबसे दूर तो -4 है ना, तो आपका ये बन गया आपका लिविंग वेरिएबल. क्लियर? तो इसका मतलब कौन सा वेरिएबल हो गया? S1 इज माई लिविंग वेरिएबल. क्लियर? अब आपको निकालना है एंटरिंग वेरिएबल. तो इस S1 कॉलम में, सॉरी रो में, ये आपका लिविंग, इसमें वो वैल्यू ले लो जो नेगेटिव है. कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव है? -1, -1. तो इसका Zj माइनस Cj के साथ रेशियो ले लो, 1/-1, और दूसरी वैल्यू 3/-1. यू कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट. तो सबसे पहले इसका एब्सोल्यूट निकाल लो. कितना आ गया? 1 and 3. तो किसका मिनिमम हुआ? 1 इज द मिनिमम. तो 1 कहां से आया आपका? x1 के साथ. x1 इज द एंटरिंग वेरिएबल, s1 इज माई लिविंग वेरिएबल, और ये -1 आपका बॉक्स एलिमेंट हो गया. फाइन. इस S1 को रिप्लेस करके आपने क्या लिख दिया? x1. क्लियर? अब बाकी वैल्यूज एंटर कर दो आप. तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो. x1. फाइन. S2 का कॉलम सेकंड कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी, S3 इज द थर्ड कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी. इसके ऊपर आपका 0 आएगा हमेशा ही. फाइन. और जो आपका ये बॉक्स है, इस पूरी रो को इस बॉक्स से डिवाइड कर दो. 1 -1 +1 -1 0 0 4. क्लियर? देन अब आपका टारगेट जो रिमेनिंग रह गए उसकी वैल्यूज निकालनी. तो मैंने दो मेथड बताए थे आपको. ये आपका है, इसको R1 ले लो. जो बाकी रो रहेगी, एक तो R2
R3 इसकी जगह तो फिर R1 ले लिया ना नीचे, R3 R4 फाइन। आपका टारगेट है इसके ऊपर सारा जीरो बनाना और इसके नीचे भी सारा जीरो बनाना। फाइन, तो पहले R2 को देखो जीरो कैसे बना सकते हो आप विद रिस्पेक्ट टू R1। तो यहाँ भी इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, तो माइनस कर देना सिंपल, तो कितना आ जाएगा 0 3 3 और माइनस करेंगे तो इट्स अ प्लस ऑफ 2 0 इंटू 1 0 0 एंड -4। सिमिलरली R3 को जीरो कैसे बनाएंगे, R3 में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दैट मीन्स R3 माइनस R1, और R4 को क्या करेंगे 0 टाइम्स R1। फाइन, तो आप अपने ऑपरेशंस लगाइए, यू विल गेट दी रिजल्ट्स। अदरवाइज एक मैंने आपको बॉक्स वाले एलिमेंट सिखाया था आपको अपने सिंप्लेक्स मेथड में, तो मान लो जैसे आपको ये वैल्यू निकालनी हो, एक वैल्यू ये 0 हो गई, एक बॉक्स हो गया, एक ये +1 हो गया और एक ये 1 हो गया, इसका बॉक्स बना लो 1 -1 0 और 1, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, बॉक्स से स्टार्ट करो 0 -1 डिवाइडेड बाय बॉक्स एलिमेंट, सो दैट विल बी +1। सिमिलरली आप कोई भी वैल्यू निकाल लो एंड देन यू कैन गेट दी सेम रिजल्ट। अब आप फिर से देखो, ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर ये वैल्यू आपकी ZJ माइनस CJ किसी से नेगेटिव आ गई तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। इसमें देखो कौन सा नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव ए की वैल्यू है, तो दैट इज माय लिविंग वेरिएबल। फाइन, इसमें नेगेटिव वाली वैल्यू कौन सी है, एक ही है, तो रेशियो भी एक ही आएगा, सो दैट इज माय मिनिमम। सो x2 इज माय एंटरिंग वेरिएबल, s3 इज माय लिविंग वेरिएबल। फाइन, अब इसमें कंप्लीट कर दो, तो सबसे पहले इसको आइडेंटिटी बना लेते हैं, x1 s2 सेकेंड कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी, x2 थर्ड कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी, इसकी वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी 0 0। इस वाली लाइन को S3 वाली लाइन को बॉक्स से डिवाइड कर दो, सो -1 0 0 -1 2। क्लियर, अब बाकी क्या करना है, अब इसका नाम आपका R1 हो गया, जो बाकी रह गए R2 R3 R4। क्लियर, अब आपको R2 इसका मतलब इस बॉक्स से ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स आपको जीरो बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे आप, R2 में से क्या करें 3, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं R1, R3 को कैसे जीरो बनाओगे, R3 में -1 है, यहाँ +1 है, सो यू कैन सिंपली ऐड देम। और R4 को कैसे बनाओगे, इसे 2 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूं। बच्चों मेक श्योर ये जो लास्ट वाले एलिमेंट है इट मस्ट बी द सेम। फाइन, और ये सेम भी क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट आपने बॉक्स बनाया था, इसको मैंने R1 का नाम लिया है, देन इट मस्ट बी सेम एज R1। क्लियर, और अदरवाइज आप बॉक्स एलिमेंट से भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी 1, ये 4 एलिमेंट बन जाएंगे, तो -1 +1, फाइन, तो दैट्स अ 0। सिमिलरली इसकी वैल्यू नीचे निकालोगे -1 -2 3 डिवाइडेड -3 डिवाइडेड बाय -1 एंड सो। क्लियर, तो आप सारी वैल्यूज अपडेट कर दो, यू विल गेट दी दीस आर दी आंसर। नाउ क्लियरली से ऑल दी वैल्यूज ऑफ द ZJ माइनस CJ, ये तो पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव आ गई, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच। अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच हो गया तो आपका x1 x2 एंड x3 इसके आंसर लिख लो आप। x1 कितना है 6, x2 कितना है लास्ट लाइन है 2, और x3 लिखा नहीं हुआ दैट्स 0, तो z का आंसर कितना हो गया -10, दैट इज द आंसर ऑफ द मैक्सिमाइजेशन। बट आपको याद हो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम थी ना ओरिजिनल में, और इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस ड्यूल LPP प्रॉब्लम। फाइन, बाय यूजिंग द ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं, सॉल्व द LPP बाय यूजिंग द ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। पहली बात है प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन, इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। फाइन, आई कैन मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, कोई कांस्टेंट आपका ग्रेटर देन का है, दोनों कांस्टेंट है, तो इसको भी -1 से मल्टीप्लाई, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई। नाउ यू कैन कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। फाइन, और अब आपका टारगेट क्या है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं 4 वेरिएबल्स, सो योर टारगेट इज टू कंप्लीट दिस एंट्रीज। तो मैं इसका अगर आपके लिए बना के दूं, फाइन, तो यहाँ पे आएगा x1 x2 s1 s2। क्लियर, x1 के नीचे वैल्यू क्या आएगी -1 -1 1 0, सेकेंड रो में -2 -3 0 1, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा -1,
तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन बना रहा है, S1 S2, तो ये आपके पास कॉलम है। फाइन, और इसी तरह से ZJ माइनस CJ निकाल लोगे, इसकी ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 3, फाइन, इट्स 1 0 0। अब आप देखो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है इस सॉल्यूशन में से, ड्यूल सिंप्लेक्स लग सकता है ना, बिकॉज ZJ माइनस CJ पॉजिटिव है, तो दूर वाली वैल्यू क्या है, मोस्ट नेगेटिव इज -2। इस रो में जाइए, जो वैल्यू नेगेटिव है उसका रेशियो ले लो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो साथ में, 3/-2 एब्सोल्यूट वैल्यू एंड 1/-3, तो इन दोनों का मिनिमम क्या आएगा, minimum will be 1/3, that means x2 is my leaving, x2 is my entering variable, s2 is my leaving variable। तो आपने इस x2 को रिप्लेस करके ये नाम लिख दिया, क्लियर। अब इसको आइडेंटिटी बना दो, s1 1 0, x2 0 1, तो इसके ऊपर 0। इस पूरी लाइन को -3 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी 2/3 0 0 -1/3 एंड 2/3, क्लियर। अब आपका काम है बाकी रो को अपडेट करना, ये R1 है, दिस इज R2 R3, तो आप R2 को 0, आपका टारगेट है इसके ऊपर 0 बनाना, तो इसको क्या करेंगे, R2 माइनस R1 एंड R3 को कैसे करेंगे, R2 प्लस R1, क्लियर, ये R1 के साथ कर देंगे ना। और अदरवाइज बॉक्स एलिमेंट से करना चाहते हो, बॉक्स से मैं कर देता हूं, अगर आप बॉक्स से निकालोगे तो कितना हो गया, -9 + 2 7 7/3, 3 -2 1 1 डिवाइडेड बाई 3, चाहे तो आप R2 प्लस माइनस R1 R3 प्लस R1, तो आप ये जब ऑपरेशन लगाओगे यू विल गेट दिस रिजल्ट्स। अब आप देखो इनमें से मोस्ट नेगेटिव क्या है, एक ही नंबर है ना नेगेटिव, दैट इज माय लीविंग वेरिएबल। इसमें आपके पास ये दो नेगेटिव हैं, फाइंड द रेशियो इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों की रेशियो लो, दैट विल बी -7, फिर एब्सोल्यूट लेना है, और इसकी रेशियो कितनी आ गई, -1, सो विच वन इज द मिनिमम, दैट इज S2 इज माई एंटरिंग वेरिएबल, फाइन, और ये आपका -1/3 बॉक्स एलिमेंट, तो इसको नाम बदल दो, S2 की वैल्यू 1 0 और x2 विल बी, इसकी जगह पे S2 हो गया और x2 विल बी 0 1, ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या होगी 0 0। इस पूरी लाइन को -1/3 से डिवाइड कर दो, सो दैट विल बी 1 0, ये सॉरी S1 तो है था ही ना, S2 था, फाइन, तो इस वाली लाइन को डिवाइड करोगे तो -1/3 से 3, इट इज माई 1, फाइन, और बाकी टेबल कंप्लीट कर लोगे ना इसी तरह से। अब आप क्या करोगे, इसको R1 R2 R3 का नाम ले लो ना, दिस इज R1 R2 और ये R3, फाइन, तो आपका टारगेट है इसके ऊपर भी 0 बनाना और इसके नीचे भी 0 बनाना, फाइन, सो वंस यू कंप्यूट यू विल गेट दिस सॉल्यूशंस। अब क्या कोई वैल्यू नेगेटिव है आपके पास, नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच हो गया, तो आपके पास x1 और x2 चाहिए था ना आपको, x1 की वैल्यू तो यहाँ लिखी नहीं 0, x2 विल बी माई 1, मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इज माई -1, बट आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की थी, मिनिमाइजेशन ऑफ z विल बी +1 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल, नाउ इन दिस केस इज ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट कांस्टेंट आपका ग्रेटर देन क्या है, यू कैन मल्टीप्लाई विद द -1, तो आपके पास प्रॉब्लम बन गई दिस साइड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यू हैव टू ऐड द स्लैक वेरिएबल S1 S2 S3, फाइन, देन अवर अगेन आपका टारगेट क्या है, इसको फिल करना, पहली रो को करते हैं x1 x2 S1 S2 S3, राइट हैंड साइड इज -2 2 1 0 1 0 10, x1 x2 S1 S2 S3 8, कौन आइडेंटिटी बना रहा है आपका, S1 S2 S3, फाइन, और अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, यू कैन राइट एज ए -2 -3 0 0, ये वैल्यू मैं यहां से लिख रहा हूं ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, S1 की वैल्यू कितनी है 0, S2 इज 0 S3 इज 0, तो 0 इंटू 0 0 0 +2 0 + 3 0 0 0, फाइन, अब आप ZJ माइनस CJ पॉजिटिव है, फाइन, और ये नेगेटिव है, तो एक ही कॉलम नेगेटिव है, दैट इज माय लीविंग वेरिएबल,
इसमें देखो कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, दीज टू वैल्यूज आर माई नेगेटिव, तो मिनिमम रेशियो निकालो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, 2 डिवाइडेड बाय -1, फाइन, और दूसरा आपके पास है 3 डिवाइडेड बाय -1, सो मिनिमम रेशियो इज फर्स्ट वन। तो आपके पास -1 इज द बॉक्स एलिमेंट, x1 इज द एंटरिंग वेव, फाइन। तो इस वाले नाम को बदल के x1 लिख दिया। इसको आइडेंटिटी बना लो पहले, S2 0 1 0, S3 फाइन, और इसकी वैल्यू आपके पास 0 0 0, और इस वाली लाइन को -1 से डिवाइड कर देंगे पूरी को, 0 1 1 -1 0 0 2। अब आपका टारगेट है बाकी वैल्यूज को अपडेट करना, तो वो कैसे करोगे, इस वाली लाइन को R1 ले लो, दैट इज R2 R3 R4। तो आपका पर्पस क्या है, ये दो वैल्यू भी जीरो बनानी और इसके ऊपर वाली वैल्यू भी जीरो बनानी। तो पहले R2 को ले लेते हैं, R2 को R1 के साथ कैसे जीरो बनाए, मैं 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, करना आपको R1 के साथ ही है। R3 को कैसे जीरो बनाएंगे, R3 में 2 है, यहाँ 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, एंड फॉर द R4 इट इज a 1, आई कैन टेक एस R4 माइनस R1, फाइन। तो सबसे पहले मैं R4 को ले रहा हूं, this minus this, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 1 minus minus plus 1 0, 1 minus 0 8 minus 2, that is a 6. Is it okay? Similarly, I can multiply by 2 and subtract them. First value will be 1, multiply by 2 and minus, find 0 0 and minus 4. Similarly, आप थर्ड रो अपने आप सेल्फ कंप्लीट कर लो, यू विल गेट द आंसर्स। अब आप देखो क्या कोई वैल्यू जेड एक्स सोल्यूशन वाले कॉलम में नेगेटिव है, दिस द वैल्यू ना जेड, इसमें नहीं देखना आपको, वैल्यूज इस कॉलम में देखनी है आपको। कोई वैल्यू नेगेटिव है इस वाले में, नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच हो गया। तो x1 की वैल्यू कितनी होगी 2, x2 है ही नहीं, फाइन, और x3 तो इस स्टेटमेंट में गिवन ही ना था, सिर्फ दो ही थे ना आपके वेरिएबल, so the maximum value of the z is -4 is the right answer. Clear? Okay, these three questions are exercise for you. Find the first problem is a maximizations, इस minimization को maximization में convert कर लेना। Find इसमें इन दो constant को -1 से multiply कर दोगे, इसमें first वाला ठीक है, last two को -1 से multiply, और इसमें आपके पास इसको break कर दोगे आप, so you will get these three answers. So you can check whether these answers are correct or not and let me know in the comment box. Fine. So we will see the next lecture on the sensitivity analysis of the LPP very soon. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.